Hello students, BSc Zoology Honors Part 1। दोनों सेशन के स्टूडेंट्स 2020 से 2023 और दूसरा सेशन 2021 से 2024। चूँकि कोरोना काल की वजह से ये दोनों सेशन अब हमारे कंबाइंड हो गए हैं, मतलब पैरेलल मजबूरीवश चलाना पड़ रहा है, तो आप दोनों की क्लासेस साथ में चलेंगी दोनों सेशंस। तो स्टूडेंट्स, पहले वाले सेशंस के क्लासेस चल रहे थे जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ से भी पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, origin of universe. Okay, this we have discussed in 7 to 8 lectures, I think. So properly now onwards I am starting with your syllabus. The first topic in your syllabus in paper 1, and those were just exposure. I was giving exposure because you are new entry in the field of the graduation and the science. Before that you were at the secondary level. Now you are at the tertiary level of the education. So you need to know the science more in detail, and you need to develop innovative approach towards it. So first of all, now what I have seen in your syllabus is origin of life. We have already discussed. You can see my old videos. The next one is the characteristics of prokaryotes and its diversity. Okay, so now we will start with we will see this in this paper 1. There are 3 sections: section A, section B, and section C. In section A, there are 2-3 topics. Let me check the syllabus. 1 second. In section A of paper 1, BSc Zoology Honors Year 1. Section A says origin of life. Already couple of lectures we have devoted to it. I don't know where I left because there is a long gap that has happened in between. So, and the second, another in the section 1 only, the first bullet is origin of life. In this first bullet only, after origin of life, you need to learn characteristics and diversity of prokaryotes. Characteristics and diversity of prokaryotes. Okay, and then in section A only, the second bullet is origin of protists. ये आई है, protists and
characteristics of protozoan protists. Okay, if we covered with these two topics, then one third of this paper will be over. That is section A. After that, we will jump to section B, in which is a lengthy section, little bit, but don't worry, we will make it simple as जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ना है. ओके, सॉरी. किंगडम एनिमेलिया में पोरीफेरा फाइलम का निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा तक. ओके, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास तक का, अप टू द क्लास, नॉट टिल द ऑर्डर. So not very difficult, that will be easy only in the section B that we will see after covering these two topics. Okay students, so now we will start. So first we will see origin of life, we have already discussed. Now we will see characteristics and diversity of prokaryotes. Okay. सबसे पहले what are prokaryotes? प्रोकैरियोट्स आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से. प्रोकैरियोट्स कई बार नाम सुना होगा आपने. ठीक है, प्रो मतलब पहले, बिफोर. ओके, और कैरियन कर्नल मतलब जो पहले लाइफ का जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो इवॉल्व हुआ, और वो प्रोकैरियोट्स कहलाए. और यह माना जाता है इन द स्टडी ऑफ origins of life, origins of life, कि प्रोकैरियोट्स सबसे पहले उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति हुई प्रोकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स के उत्पन्न होने से पहले प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई. राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत सालों से biologists have tried their best to classify based upon the characteristics, external characteristics, anatomical characteristics, other characteristics, those characteristics, that characteristics. I mean to say, in the variety of levels, they have tried to group similar looking animals together, or similarly behaving animals together, or animals having similar type of anatomical details together. At the various types of levels, they have tried to group those animals together so that they study them in a better way. This has been tried a lot by various investigators since the ages. That's why you find
many different types of classifications. Two kingdom, three kingdom, five kingdom. Okay. Today I will talk about domain that you might not have heard of. Domain. Domain is the term first coined by Carl Linnaeus, जिसने ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स का, लिविंग एनिमल्स का किया था, जिसने उन्होंने टर्म यूज किया था डोमेन। उसके बहुत दिनों के बाद तक, आज तक और अभी से कुछ वर्षों पहले तक यह टर्म जो है यूज नहीं किया जाता रहा जूलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स, बायोलॉजिस्ट के द्वारा। लेकिन विगत कुछ वर्षों से 1990 onwards, based upon the molecular evidences and studies, investigations, they were surprised to know that Carl Linnaeus was right. He divided certain animals into certain organisms into certain groups. So today we will talk about domain. So before that, going into that, what are prokaryotes? Prokaryotes are basically unicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और क्या, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। Okay. So in different kinds of classification systems that were used before, suppose in two empire system, there were three domain system nowadays that we are following, based upon the molecular analysis. पहले क्या था, टू एम्पायर सिस्टम। टू एम्पायर सिस्टम मीन्स, कहने का मतलब लाइफ, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको अगर मिला दें, सपोज करो मिक्स कर दो, सब तरह का, प्लांट से लेके बैक्टीरिया से लेके चूहा से लेके शेर, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, जितने भी तरह के लाइफ के फॉर्म्स है धरती पर, सब टोटल लाइफ फॉर्म्स, इनको डिवाइड किया गया दो डोमेन में। पहले टू डोमेन सिस्टम कहते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पहले आए, लेटर ऑन यूकैरियोट्स इवॉल्व्ड। ओके, कब आए, धरती की उत्पत्ति कब हुई, 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ। ओके, लगभग हमको 3.5 बिलियन ईयर्स एगो का हमको फर्स्ट फॉसिल मिलता है। ऑब्वियसली ये क्या है, प्रोकैरियोट।
एंड लगभग 2 बिलियन ईयर्स ago, it is thought to be that first eukaryotes might have emerged based on fossil evidence. ये टाइम प्लान है, आप ऐसे समझो। तो ये था क्या, ये क्या है, 2 डोमेन सिस्टम। आप कहोगे डोमेन क्या है भाई, आप अभी तक किंगडम के बारे में जान रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे +2 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा ऑनवर्ड्स यूकैरियोट है। मोनेरा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, fungi is both unicellular eukaryote and multicellular eukaryote. Plant and animals are multicellular eukaryotes. But in the recent studies, it has been found that on the basis of molecular analysis, scientists noted that a group from the prokaryotes have diverged from another group in the prokaryotes much earlier. So they proposed 3 domain system. So the timeline is because that group is nearer to eukaryotes than the another group of prokaryote. I will make it clear more to you. It's like 3 domain system. डोमेन क्या है, जैसे आपको अभी आपको लाइफ हुआ, ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट लेवल, ये डोमेन है। ओके, डोमेन विल बी डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ओके, किंगडम विल बी डिवाइडेड इनटू सब किंगडम, या नहीं भी डिवाइड हो सकता है सब किंगडम। ठीक, ओके, जैसे कोर्डेटा का सब किंगडम इनवर्टिब्रेट है। ओके, सिफेलोकॉर्डेट्स दूसरा सब किंगडम है। ठीक है, किंगडम फिर फर्दर डिवीजन हो सकता है उसमें, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, इसी तरह सब और सुपर ये लगा देंगे, सब लगा देंगे तो क्लास के बाद वाला हो जाएगा, सुपर लगा देंगे तो क्लास के पहले हो जाएगा। तो जैसे अगर हायरार्कियल वे में देखोगे तो सुपर क्लास पहले आएगा, देन क्लास विल कम, देन सब क्लास विल कम, सब क्लास के बाद सुपर ऑर्डर विल कम, उसके बाद ऑर्डर आएगा, देन सब ऑर्डर आएगा, सब ऑर्डर के बाद सुपर फैमिली, देन सब फैमिली। ठीक है, तो बीच में उसका नाम रहेगा और उसके ऊपर वाले में सुपर और नीचे वाले में सब। तो ये हो गया डोमेन। कहाँ पर डोमेन की जगह कहाँ है, किंगडम के पहले। ओके, तो 3 डोमेन सिस्टम दे हैव प्रपोज्ड। ठीक, सो 3 डोमेन सिस्टम के अनुसार,
ठीक है, लेकिन 3 डोमेन सिस्टम में मैं आना चाहता हूँ, लेकिन प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको कुछ बातें और जानने ली चाहिए। जैसे कि जल्दी कर देते हैं कवर कि न्यूक्लियस पर तो मेम्ब्रेन नहीं, साथ ही साथ दे लैक मेम्ब्रेन ओवर माइटोकॉन्ड्रिया, दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, and they also lack other membrane bound organelles. They lack mitochondria and other membrane bound organelles. ठीक है, organelles NELLES है। ओके, तो अब इसमें इतनी डाइवर्सिटी है प्रोकैरियोट्स में, तो बेसिकली यूकैरियोट्स नहीं। अभी हमको आपके सिलेबस में मुझे आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ाना है, प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी डाइवर्सिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गए आपके। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स unicellular organism, they do not have nuclear envelope, they lack mitochondria, chloroplast, and they also do not have any other membrane bound organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi complexes, lysosomes, etc. Okay, they reproduce asexually without fusion of gametes, but horizontal gene transfer may take place through the conjugation. These 2 points जो अभी अब मैंने बोला वो आप यहाँ ऐड कर लेना। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर, सिंपल सा है। ठीक है, तो बाद के स्टडीज में पता चला कि सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, तो इन्होंने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की प्रोकैरियोट्स को। पहले प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया और आपके आर्किया, ये सब डोमेन आते थे। ओके, बट आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों को अलग कर दिया गया है। वो प्रोकैरियोट्स ही, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। तो आइए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को पहले से लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ 2 किंगडम में लाइफ से शुरू किए, यहाँ भी लाइफ यानी जो यूनिवर्सल एंसेस्टर है, विश्व विधाता, जो सबका मालिक, सबका बाप है, यूनिवर्सल एंसेस्टर। इसके 2 बेटे हुए, समझो कि 2 तरफ डाइवर्सिटी गई। first domain is, they were called bacteria,
the second branch, the second lineage. See, this is lineage, okay? And this lineage is branched into two groups. One group is bacteria, okay? Another group is again, another group or lineage is again branched into two groups. So one is called as domain eukarya, and another one is domain archaea. The third one is domain बैक्टीरिया. यानी समझो, एक पिता के दो बच्चे, एक बच्चा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ऐसा कैसा आ गया वो, इसके अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, तरह तरह के बैक्टीरिया है. दूसरा बच्चा थोड़ा सीधा था, उस सीधा बच्चा का भी यहाँ से फिर दो बच्चे हुए. समझो, इस तरह से समझो, ब्रांचिंग हुई, उसके भी दो. समझ गया? तो आर्किया का चाचा हुआ बैक्टीरिया, यूकेरियो डोमेन यूकेरिया का चाचा हुआ डोमेन बैक्टीरिया. ठीक है, यहाँ के बाद इससे दो ब्रांच है. और यह मॉलिक्यूलर स्टडीज में पाया गया है कि जो डोमेन आर्किया को हम लोग पहले समझते थे कि ये प्रोकैरियोट्स है, दे आर नियरर टू बैक्टीरिया. दैट इज नॉट ट्रू. आर्किया, this group is closer to eukaryotes than bacteria based on the molecular evidences. अब देखिए, तो अब क्या नॉलेज है हमारे पास कि प्रोकैरियोट्स फिर कितने तरह के हुए, दो बड़े प्रोकैरियोट्स. भले ही आर्किया यूकैरिया के ज़्यादा नज़दीक है, बट आर्किया इज स्टिल प्रोकैरियोट्स बिकॉज आर्किया लैक्स न्यूक्लियर एनवेलप. सो प्रोकैरियोट्स आर are both bacteria and archaea. ठीक है, हाँ ये बात है. आर्किया जो है वो यूकैरिया के ज़्यादा करीब है बनिस्पत की बैक्टीरिया से. ठीक, लेकिन ये भी प्रोकैरियोट ही है. ओके, एंड दीज बैक्टीरिया एंड आर्किया, these prokaryotes are found everywhere corner of the earth. Everywhere on the earth you will find them. In all ecosystems, they are found in every ecosystem. आपके घर के फर्श से लेकर आपके शरीर के अंदर तक
दे आर प्रेजेंट। कौन? बैक्टीरिया एंड आर्किया। कुछ बैक्टीरिया और आर्किया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। जहां पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी वो रहते हैं। जैसे थर्मल वेंट, या समुद्र की सतह, ओशियन फ्लोर पर। समुद्र की सतह पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। समुद्र की सतह पर, उसके ऊपर वाटर कॉलम का कितना प्रेशर है अगर समुद्र, गहरे समुद्र में जाए तो। बट दे आर फाउंड देयर ऑल्सो। ओके, लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन फिर भी इनको डिटेक्ट करना, काउंट करना और क्लासिफाई करना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। इन्हें डिटेक्ट करना, ठीक है, काउंट करना, ठीक है, कौन सा प्रोकैरियोट है, क्लासिफाई करना इज वेरी चैलेंजिंग। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी इतनी ह्यूज है कि हमारे पास जो नॉलेज है आज के डेट में प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की, वह एक टाइनी फ्रैक्शन भी नहीं है जितने प्रोकैरियोटिक स्पीसीज धरती पर हो सकते हैं। उसका टाइनी फ्रैक्शन के बारे में भी हमें नहीं पता है, उनके डाइवर्सिटी की। आप स्पीसीज के बारे में सुने होंगे। स्पीसीज का आइडिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितना आसान लगता है होगा आपको। अच्छा, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये हाथी है, आराम से। दे आर डिफरेंट स्पीसीज, बट फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, the very idea of a species becomes complicated. Okay, so but we will try to look into this. What are the major groups that you see in prokaryotes, their diversity, and then we will try to classify them somehow. Okay, ये हम लोग भी पढ़ेंगे। कुछ बातें आप और भी जान लीजिए कि ये सब डोमेन जो हैं, प्रोकैरियोटिक डोमेन्स जो हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से जिसकी यात्रा चल रही है, उसके दौरान ये स्प्लिट हुए, इनके लीनिएज स्प्लिट हुए, फिर फर्दर स्प्लिट हुए, ब्रांचेज हुए, ब्रांचिंग हुई, फिर ब्रांचिंग की, फिर स्प्लिटिंग, ब्रांचिंग, स्प्लिटिंग, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फॉर्मूला भी लगा, और इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। ओके, बैक्टीरिया बहुत डाइवर्स ग्रुप है। तरह तरह के बैक्टीरियाज हैं हमारे चारों तरफ।
कोई एक तरह का बैक्टीरिया नहीं है, मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया आर देयर. Okay, and they are ranging from disease causing pathogens to beneficial भी हो सकते हैं बैक्टीरिया. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया कमेंसलिज्म में रहते हैं, प्लांट के साथ एसोसिएटेड, और उनके लिए फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को देते हैं. दे आर फोटोसिंथेसाइजर्स. सम बैक्टीरिया लिव इन कमेंसलिज्म. दे आर सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोसिस में भी रहते हैं. लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बीमारी भी पैदा कर सकते हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया दोनों तरह के हो सकते हैं, फ्रेंडली भी, बेनिफिशियल भी आपके लिए, और पैथोलॉजिकल भी, डिजीज काउजिंग भी. लेकिन आर्किया जो है, so far till today we do not know any archaean unicellular organism which is causing disease. No archaeans are pathogens. None of the archaeans are pathogens. Although this group of archaea is also diverse. And they also live in extreme environments like bacteria does. They also live in extreme environment. ये प्रोकैरियोट का हम लिखे हैं. And they are found in every ecosystem. They live in extreme environments. To detect, to count, classify is very challenging. तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो गया प्रोकैरियोट का. यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1 2, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1, यहाँ के पॉइंट्स के भी जोड़ लो. तो ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, आर्किया भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट ये दे आर नॉन पैथोजेनिक. कोई भी ऐसा हो सकता है बाद में कोई मिल जाए आर्किया जो बीमारी पैदा कर, लेकिन अभी तक नहीं. ओके, अब हम इन ग्रुप्स को आर्किया और बैक्टीरिया बेसिकली, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो यही दोनों हैं, ये हम थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, इनको देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बिकॉज योर सिलेबस स्टेट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स, अब थोड़ा सा डाइवर्सिटी यानी कितने तरह के प्रोकैरियोट्स हैं वो जान लीजिए. दो तरह के प्रोकैरियोट्स का ग्रुप तो बना दिए, बैक्टीरिया एंड आर्किया. तो क्या सारे बैक्टीरिया एक ही तरह के हैं और सारे आर्किया क्या एक ही तरह के हैं? नहीं, बैक्टीरिया भी बहुत डाइवर्स है. क्योंकि बहुत इनमें डाइवर्सिटी है और इनको टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग करना इन प्रोकैरियोट्स को काफी डिफिकल्ट रहा. ओके, और मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट के साथ ही मॉलिक्यूलर टूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स के एडवांसमेंट के साथ नाउ वी कैन स्टडी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल पर हम जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स ये सब स्टडी करने के बाद, मेटाबॉलिज्म स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे
कि प्रोकैरियोट्स भी दो तरह के, आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब आर्किया करीब है यूकेरियोट्स, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यूकेरिया प्रोकैरिया नहीं है। अब देखिए इन क्या क्यों करीब है, किस चीज़ में करीब है, उनके जेनेटिक स्टडीज से पता चला कि डिस्टेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्किया इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन यूकेरिया एंड आर्किया, जेनेटिक डिस्टेंस। सो अब हम जैसे देखिए आर्किया है, इसको अब क्लासिफाई कीजिए। प्रोकैरियोट्स पहला, आर्किया तो बाद में आया, हम बैक्टीरिया पहले आए। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे, कितने तरह के बैक्टीरिया हैं तो हजारों करोड़ों तरह के, लेकिन उसमें भी 5 जो बड़े कैटेगरीज, इनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया इन बैक्टीरियाज को। पहले तो नाम सुने होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नंबर 2 साइनोबैक्टीरिया। नंबर 3 स्पाइरोचिट्स। नंबर 4 क्लेमाइडियाज, CHLA क्लेमाइडियाज, चलामाइडियाज, लेकिन बोलोगे क्लेमाइडियाज। 5वां प्रोटियोबैक्टीरिया, सबसे पहले वाले बैक्टीरिया, ये सबसे पुराने बैक्टीरिया है, प्रोटियोबैक्टीरिया। ये 5 तरह के बैक्टीरिया है, डिवीजन, या कह सकते हैं बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोट्स, ये है बैक्टीरिया आपका डोमेन। ओके, डोमेन के ये हो गए आपके किंगडम्स। अब आते हैं नेक्स्ट, आर्किया। डोमेन, आर्किया डोमेन में डिविजन्स आर यूरियार्किया, यूरियार्कियोट्स। दूसरा क्रीनेचियोट्स।
तीसरा नैनो आर्कियोट्स, नैनो आर्कियोट्स। चौथा कोरैरकियोट्स, कोरैरकियोट्स। 4 ग्रुप है। ओके। और बैक्टीरिया आर्किया, ये स्प्लिटिंग जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो गई प्रोकैरियोट्स में ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। और उसके बाद ये स्प्लिटिंग हो गया, ये लिनिएज उधर, तो फिर इसमें भी डाइवर्सिटी आती गई, बहुत सारे ग्रुप्स बने, स्पीसीज बने। तो आप देखिए कि बैक्टीरिया डोमेन में 5 मेजर ग्रुप है। प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लेमाइडियास, स्पायरोचीट्स, साइनोबैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, फिर बाद में अब डिटेल में जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रोटियोबैक्टीरिया को भी फिर सब डिवाइड किया गया 5 ग्रुप में, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। है ना, 5 ग्रुप में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, 5 ग्रुप है इसका प्रोटियोबैक्टीरिया का। और इन सारे स्पीसीज जो हैं इनमें, इस ग्रुप में डिफरेंट रेंज ऑफ उनका स्टाइल्स है, लाइफ स्टाइल्स है। ठीक है, कुछ प्लांट के प्रति सिम्बायोटिक हैं। सिम्बायोटिक मतलब उनकी हरकतों से प्लांट को भी फायदा हो रहा है, प्लांट की हरकतों से वो भी, दोनों एक दूसरे का लाभ उठा रहे हैं। कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, थर्मल वेंट्स में रह रहे हैं, जहाँ पर बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, उसमें भी वो सरवाइव कर रहे हैं। सी के बॉटम में रह रहे हैं, ओशियन फ्लोर पर। और कुछ प्रोटियोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज काउज कर रहे हैं ह्यूमंस को। ठीक, फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं, साल्मोनेला फॉर एग्जाम्पल। सो प्रोटियोबैक्टीरिया, और ये सब प्रोटोबैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं आपको। कुछ प्रोटियोबैक्टीरिया स्टमक अल्सर को भी काउज कर रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। फूड पॉइजनिंग, साल्मोनेला, ये कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना, पढ़ा होगा क्लास 12th में, जिसमें वो रूट ऑफ द लेग्यूम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, राइजोबियम बोला जाता है उनको। दीज आर अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, राइजोबियम। ओके। बीटा प्रोटोबैक्टीरिया, रैट बाइट फीवर बीमारी काउज करता है, बीटा प्रोटोबैक्टीरिया। इस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई नाम सुने होंगे, ई कोलाई, वो है गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ई कोलाई। साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग करता है, ओके, दैट ऑल्सो इज गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। ओके, कोलरा काउज करने वाला विब्रियो कोलरी, दैट ऑल्सो इज गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। तो कुछ प्रोटियोबैक्टीरिया बेनिफिशियल सिम्बायोंट्स हैं, जो कि हमारे गट में, इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, और कुछ पैथोजेंस भी हैं। तो सॉरी,
कुछ, अब जैसे डेल्टा, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो, दिस वन, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया मिक्सोबैक्टीरिया है। और आपका सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, दैट ऑल्सो इज डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया है। या स्पोर फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज बैक्टीरिया which is living in adverse condition, that also is delta proteobacteria. एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया, ये हैं आपके कैम्पिलोबैक्टर। ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज काउज कर देते हैं, क्योंकि ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है एंड इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन हो जाता है। दैट इज द एप्सिलॉन वन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो स्टमक अल्सर काउज करता है, वो भी एप्सिलॉन प्रोटोबियोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस तरह का है ये सब। आपको बता दिए प्रोटियोबैक्टीरिया इतने तरह के हैं। तो ये सब, सॉरी, दीज आर नॉट द किंगडम्स, दीज आर फाइलम्स। फाइलम्स ऑफ डोमेन, किंगडम कोई नहीं है भी, किंगडम मिसिंग। डोमेन के बाद किंगडम की जरूरत नहीं, किंगडम इस डोमेन में ये सब फाइलम है। बैक्टीरिया डोमेन के फाइलम है ग्राम पॉजिटिव, साइनोबैक्टीरिया, ये सब। ओके, तो प्रोटियोबैक्टीरिया डिस्कस कर लिए हैं। अब आप देखिए दूसरा अब कौन फाइलम बचा, क्लेमाइडियास। क्लेमाइडियास फाइलम, क्लाइमेट इसमें कोई डिवीजन नहीं है इस फाइलम में। इस फाइलम में, क्लेमाइडियास फाइलम में, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, they live inside the animal cells, they are parasite of the animal cells। ठीक है, जैसे क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कॉमन क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम है इसका। कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधा हो सकता है। ओके, सो दैट इज क्लेमाइडियास जितने भी। और इनकी खासियत क्या है, देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। और क्या है ये, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर घुस के सेल का पैरासाइट। जैसे वायरस होता है इंट्रासेलुलर, वैसे भी ये सेल के अंदर चला जाता है, क्लेमाइडियास। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट ये, ओके, नाम जैसे इनका नाम इसी आधार पर पड़ा कि इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर, ज़्यादातर स्पीसीज जो हैं वो स्पाइरल शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, और स्वतंत्र हैं, फ्री लिविंग है, एनारोबिक है, एनारोब्स, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कुछ पैथोजेनिक भी हैं, बीमारी काउज भी करते हैं। ओके, कुछ क्लेमाइडियाज भी पैथोजेनिक थे, प्रोटियोबैक्टीरियाज भी पैथोजेनिक थे, अभी बताया नाम सब जो पैथोजेनिक थे। बैक करके सुन सकते हैं आप, रिपीट करके दोबारा। क्लेमाइडियाज भी पैथोजेनिक थे, बीमारी करने वाले, पैदा कर सकते थे क्लेमाइडियास। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काउज करते हैं। स्पायरोचिट्स में सब नहीं, बट फ्यू आर पैथोजेनिक, मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, एनारोबिक, एनारोब्स, दे हैव फ्लैजेला। ओके, जैसे सिफिलिस, causative agent of syphilis, syphilis is again sexually transmitted disease। सिफिलिस काउज होता है
ट्रिपोनिमा पैलिडम से नाम के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो वो बिलोंग करता है स्पायरोचीट से, सिफिलिस वाला। ट्रिपोनिमा पैलिडम DUM। अब आइए नेक्स्ट ग्रुप, साइनोबैक्टीरिया। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है इनको, क्योंकि these bacteria obtain their energy through photosynthesis। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये जमीन पर, समुद्र में, सॉल्टी वाटर हो चाहे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट हो, सभी जगह पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है थ्रू द साइंटिफिक एविडेंसेस बेस्ड ऑन द DNA studies that eukaryotic chloroplasts are derived from these bacteria। ओके, कहाँ से? साइनोबैक्टीरिया। Some cyanobacteria started living inside the cell। ठीक है, another cell। तो and they become symbiote later on during the course of the evolution, that cyanobacteria started doing photosynthesis and then it became chloroplast। So these are the cyanobacteria। Okay, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया हमारे सर्वाइवल के लिए, इस वर्ल्ड के सर्वाइवल के लिए। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया का 50% ऑक्सीजन सप्लाई साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। आप सोचते होंगे कि जंगलों में, सही बात है, पेड़ भी ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया इतना ज़्यादा है, इनकी संख्या, इनके नंबर्स, कि दे फुलफिल द डिमांड ऑफ 50% of the half of the world's oxygen generation is done by cyanobacteria। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा, यही साइनोबैक्टीरिया प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन alone is responsible for the 30% of the oxygen production। Okay, of the world। तो टोटल वर्ल्ड में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, 50% साइनोबैक्टीरिया ने अकेला कर दिया। ये 50% में 30% प्रशांत महासागर का इंक्लूडेड है। रेस्ट ओशियंस जो है 20%। ठीक है, और जो रेस्ट 50% बचा, 50% साइनोबैक्टीरिया अलग कर दिया, रेस्ट 50% बचा, वो अमेजन का जंगल, वर्षा वन हो चाहे अफ्रीका के वर्षा वन हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ और हमारे भारत के हिमालय के वन, आप अगल बगल झाड़ पौधा जो लगाते हो, वो रेस्ट, पूरा दुनिया का पेड़ जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो, और एक तरफ साइनोबैक्टीरिया अकेला 50% ऑक्सीजन धरती का बना रहा है। इट इज एडिंग अप द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
सो इनको एक बार सैल्यूट करना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया। और ये हो गया आपका, ठीक। बहुत है इस तरह के साइनोबैक्टीरिया हैं, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया नाम ही काफ़ी है, सबका डिफ़िकल्ट नाम याद रखने की भी आपको फर्स्ट ईयर में आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर। कई तरह के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। दे आर पैथोजेनिक, दे आर सॉइल डवेलिंग, okay. Some gram positive bacteria, they decompose organic matter. Some species cause diseases. Characteristic feature of this gram positive bacteria is that they have a thick cell wall, but they lack an outer membrane. So few of the examples that I am going to mention right now is, you can note it down. The causative agent of anthrax, that is the Bacillus anthracis. This is gram positive bacteria. Okay. The causative agent of botulism disease, mycoplasmas. Mycoplasmas are the tiniest बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। These are the tiniest bacteria, the smallest known. They don't have cell wall, they are free living, and many of them are pathogenic. Okay. The bacteria which causes diarrhea, okay, that also is gram positive bacteria. So there are many examples. So bacteria part is over now. Hope you have got it. Shall we move to archaea? Students, आपकी अटेंडेंस होगी, यह क्लास जब टेलीकास्ट हो, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जब मैं इसको प्रीमियर करूँगा, दैट टाइम आई विल टेक अटेंडेंस। आर्किया ग्रुप में डोमेन में आते हैं। इसमें फाइलम्स हैं आपके यूरयार्कियोट्स, क्रीनेरकियोटा, नैनो आर्कियोटा, कोरैरकियोटा, यानी ये हो गए आपके यूरयार्कियोट्स, क्रीनेकियोट्स, नैनो आर्कियोट्स, क्रीरेकियोट्स, यूरयार्कियोट्स, कोरैरकियोट्स, चार ग्रुप, चार फाइलम। अब देखिए वन बाय वन। यूरयार्कियोट्स, this phylum includes methanogens. Methanogens means methane producing bacteria. Okay. They produce methane as a metabolic waste. As we produce CO2 as a metabolic waste, these prokaryotes produce methane as the metabolic waste. Okay.
यारकियोट्स मिथेनोजेंस है। एक और है इसका एग्जाम्पल आपका हेलोबैक्टीरिया। हालो बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया से आप कंफ्यूज मत होना कि बैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करता है। नाम में बैक्टीरिया भले लगा, अभी रिसेंटली नाम बहुत पहले रखा जा चुका था, क्लासिकल नेम है, बट ड्यूरिंग अभी रिसेंट स्टडीज़ के द्वारा पता लगा कि दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसको हेलो बैक्टीरिया इज अंडर आर्किया, नाम वही रह गया पुराना, हेलो बैक्टीरिया। ओके, तो हेलो बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि दे कैन लिव इन एन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरमेंट। एक्सट्रीम सलाइन, कितना भी खारा पानी, नमकीन पानी, उसमें हेलो बैक्टीरिया दे सर्वाइव, दे दैट इज देयर हैबिटेट। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं क्रीरैरकियोट्स पर। इस फाइलम के बैक्टीरिया जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन। Many of the species belonging to Crerarchaeotes are सल्फर डिपेंडेंट एक्सट्रीमोफाइल्स। जब हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं तो कहने का मतलब है एक्सट्रीम कंडीशन लविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रीमोफाइल्स। सच एज सम आर थर्मोफिलिक, मीन्स they love boiling water. If you place those bacteria in 40 degrees centigrade, the bacteria will not survive. If you put the bacteria in 90 degrees centigrade, it will live, it will survive happily there. It will, that is the requirement of that bacteria, 90 degree. Okay, in 40 degrees उसको ठंडा लग जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, हम लोग, so these are extremophiles in extreme environments, they are suited for that. Okay, so Crerarchaeotes are the these are the organisms belonging to Archaea kingdom, phylum Crerarchaeotes. They play important role in the fixation of carbon, as well as they are sulfur dependent extremophiles where they live in thermophilic vents and hyperthermophilic vents. बहुत ही गर्म पानी के स्रोत जहाँ पर थर्मोफिलिक वेंट, वहाँ रहते हैं। ठीक है, 2 से 3 pH के बीच में भी दे सर्वाइव। एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड देयर ऑप्टिमम pH इज देयर। 70 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको ठंडी लग जाएगा, वो नहीं सर्वाइव करेगा। ओके, अब देखिए नैनो आर्कियोट्स। नैनो आर्कियोट्स, this group is basically containing only one species जिसका नाम है नैनो आर्कियम इक्विटांस। नैनो आर्कियम इक्विटांस। ये ई छोटा होगा। इक्विटांस
एक ही स्पीसीज बिलोंग करता है इसमें। ओके, और क्यों इसको अलग रखा गया, एक ही स्पीसीज है फिर भी? क्योंकि यह स्पीसीज जो है आइसोलेट किया गया है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिका, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन जो अमेरिका और यूरोप के बीच में है, अटलांटिक ओशियन के सतह से, पानी की सतह से ये आइसोलेट किया गया है, और वहाँ पर भी एक हाइड्रोथर्मल वेंट से। ओके, तो दैट्स वाई दे हैव प्लेस्ड इन, दे आर extremophile, they are withstanding extreme temperature and pressure both, because they have isolated it from a thermal vent and from the bottom of the sea floor, from the sea floor, extreme pressure and temperature they are withstanding. Now, so this one, this last one, कोरार्कियोट्स, ठीक है। And we have very little knowledge about this group of single cellular organisms, and it is thought to be that members of this phylum are considered to be one of the most primitive ones, most primitive forms of the life. And they are living today also. Okay. But surprisingly, know why we have very little knowledge about this, that we have not been able to cultivate it under the laboratory conditions. Why? Because these are extremophiles. They need extreme conditions. So to replicate or duplicate that extreme condition in the laboratory setup, we are not successful yet. Okay, because we don't know, apart from the extreme temperature, what extreme else conditions these microorganisms need. So the cultivation of this is unsuccessful still. So for many years बहुत सारे अप्रोच लगाए गए इन प्रोकैरियोट्स को स्टडी करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए लैब में। लैब में कैसे ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? आपने अगार का नाम सुना होगा। अगार, AGAR, अगार, अगर आपने अगार का नाम सुना है तो एक अगार प्लेट होता है, जैसे एक प्लेट है, अगार इज द मीडियम। इसी अगार से एगरोज भी बनाया जाता है, और एगरोज काम आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। आगे पढ़ोगे आप, DNA आइसोलेट करके इसमें DNA स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो एगरोज से आता है। यहाँ पर एगार से मीन्स बेसिकली ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो अगार इज द मीडियम, तो अगार कैन प्रोवाइड द एनर्जी। सो इफ यू mix this agar in the medium
and you grow your organism, you will see that there will be the formation of plaque over the plate. Plaque indicates that in this region of the plate, the bacteria has developed into the colonies. Bacteria has bacteria have divided rapidly and they have eaten up the medium over in this area and they have developed the colony here, plaque. So like this. So you will see it, you can see with your eyes, otherwise you have to see, you need microscope to see the bacteria. So you see the plaque here, so that means your bacteria has been cultivated. Now it depends upon you or the condition which bacteria requires. Accordingly, you will put this agar containing medium plate into incubator, which will be set at certain temperature, certain humidity level, certain percentage of CO2. Okay, because if this bacteria which you are growing on the plate are supposed to be uh, are needing the anaerobic condition, then you have to increase the CO2 concentration in your incubator chamber. So likewise, there are many if and buts and permutation communications. So like this, they do the studies. But the diversity of this prokaryotic world is so enormous. Millions and billions of species might have been there. We don't know even a tiny fraction of this large repertoire of the species. So we probably need to define a supercomputer, even a supercomputer, many supercomputers we need to combine, and then we can address this challenge. So even that, we will not be able to completely explore this unicellular world of the prokaryotic species, because this basic question is still a very complex question and a controversial one too. Okay, because for a species to define, most scientists use a term such as a group of organisms, and these organisms can interbreed between themselves and have fertile offsprings. By definition, this is the definition of species. But this definition makes sense for the species that reproduce sexually, but it doesn't work so well for organisms like bacteria, because bacteria reproduce asexually. They reproduce asexually. They make their own clones themselves. They don't interbreed. So, definition of species becomes complex over here. What you see is there are enormous varieties of microorganisms are present. Okay. Hope I have made it clear to you, students. We will meet in the class. No, not in the class. Your online class is over now. So we will continue in the next class.